Yeah, hello students, and in this video lecture we are going to discuss about the classification of mollusk. So in the previous lecture we have discussed about general feature of mollusca. Mollusca are commonly known as soft bodied animal, and the characteristic feature of mollusk is mantle, and due to the presence of mantle they are known as soft bodied animals. Then mantle used to secrete a protective layer which we call shell, and molluscans are also known as shelled animal. The body of mollusk was being divided into head, visual hump and foot, and depending upon what kind of food they are having, they have been classified into a total of 6 major classes. So in today's lecture we are going to discuss 6 major classes. What you have to remember? You have to remember the name of classes, then what are the features of animal which has been classified in the classes, and few examples. So that would not be a very lengthy lecture. Let us start with the classification of mollusca. The first class which we are going to discuss is Monoplacophora. Class 1 is class Monoplacophora. Monoplacophorans are having a single shell. Mainly in this class, a connecting link between mollusca and annelida is classified. Monoplacophora, it include the connecting link between mollusca and annelida. So the general features of it, that the animal is completely marine, they are having a single shell, one piece shell, and this shell is in the shape of spoon. Then you will remember that the members of Monoplacophora, they are connecting link between annelida and mollusca. So there are certain features which are from annelid. What are the annelid features? They are having 8 pair of muscles with 5 to 6 pair of gills, and most important, they are having 5 pair of segmented nephridia. 5 pair of segmented nephridia. So presence of muscles, presence of gills, presence of nephridia, these all are the characters of annelid. Why they are classified in mollusca? Presence of mantle, due to the presence of mantle, they have been classified in phylum mollusca. The classical example, now that one more thing, the larva of Monoplacophora, they are having indirect development, and larva is exactly like that of annelida. And what type of larva was found in annelida? In annelida, you have studied that they are having a trochophore larva. So larva here is trochophore larva, and the example of this class is Neopilina. I already told you that Neopilina is the only segmented mollusk. Neopilina galathea is the only segmented mollusk. So Neopilina is also regarded as living fossil. The very first time in the year 1952, it was being found from Pacific Ocean, and it is believed that it is not undergoing any changes for million of years. That's why the name living fossil. तो जो पहला क्लास होगा उसका जो शेल होता है वो उस स्पून शेप्ड होता है. सारे मैराइन ऑर्गेनिज्म होंगे, बॉडी के अंदर सेगमेंटेड नेफिडियाज होंगे, 5 to 6 पेयर ऑफ गिल्स होंगे, मसल्स होंगे. मेंटल की वजह से उसको मोलस्का में क्लासीफाई किया है. उसका लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होता है, अगेन एनिलीड वाला करेक्टर, एंड जो एग्जाम्पल होगा डेट वुड बी नियोप्लिना ग्लेथिया. तो जो पहला क्लास है मोलस्का का वो तो कनेक्टिंग लिंक के लिए हो गया. इज दैट क्लियर? सेकेंड क्लास की अगर बात करें, सेकेंड क्लास is class
The name of class is Amphineura. Amphineura वर्ड आया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कोड, और दूसरा नाम होता है इसका पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा इसलिए वर्ड यूज किया है कि इसका सिंगल पीस शेल ना होकर उसका मल्टी पीस शेल होता है। एंड आई विल बी टेलिंग यू दे आर ऑन द डोर्सल साइड, ऑन द डोर्सल सरफेस जो शेल होता है वो 8 पीसीज होता है। तो एम्फीन्यूरा के जब कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इन एम्फीन्यूरा के ऑर्गेनिज्म भी आपको मेराइन ही मिलेंगे। जो शेल होती है उनकी विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज हैविंग 8 प्लेट्स, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन और अगर फीचर्स याद करें, एम्फीन्यूरा या पॉलीप्लेकोफोरा के जो हेड होता है, इनका हेड रिड्यूस होता है। देन इनके पास नॉन गैंग्लियोनेटेड, इनकी जो नर्व कोड होती है उसके ऊपर गैंग्लियन वगैरह नहीं होते हैं, नॉन गैंग्लियोनेटेड 2 पेयर ऑफ नर्व कोड, राइट। देन यू विल रिमेंबर, अच्छा शैल वगैरह मेंटल वगैरह कंसेप्ट नहीं याद रखे तो डेट वुड बी ओके। जो मेंबर्स हैं वो मेराइन है, वो जनरली इडिबल होते हैं। जो एग्जाम्पल होता है पॉलीप्लेकोफोरा का, अच्छा हेड रिड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। जो एग्जाम्पल होता है वो होता है शाइटोन और शिटोप्ल्यूरा। तो शाइटोन और शिटोप्ल्यूरा, that is the member of class Polyplecophora or Amphineura. Chiton or Shittopleura is edible and it is commonly known as sea beef. Chiton or Shittopleura is edible and it is commonly known as sea beef. तो जब आप इसको डोर्सल साइड से देखते हैं तो डोर्सल साइड से इसके पास 8 प्लेट्स ऑफ शेल होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ 8 प्लेट्स ऑफ शेल इसको पॉलीप्लेकोफोरा बोला है। पेयर्ड 2 पेयर ऑफ नर्व कोड होता है और नॉन गैंग्लियोनेटेड होगा, इसलिए नाम एम्फीन्यूरा रख दिया। इनके अंदर जो लार्वा होता है, इनका लार्वा भी ट्रोकोफोर लार्वा ही है। तो लार्वा ऑफ शाइटोन इज आल्सो ट्रोकोफोर लार्वा। तो एक क्लास हो गया ऐसे एनिमल का जो कनेक्टिंग लिंक है, एक क्लास हो गया ऐसे एनिमल का जिसकी जो प्लेट्स हैं वो शेल में है, नंबर ऑफ डिफरेंट शेल्स आर देयर, जिसकी जो शेल है वो प्लेट्स में है। जो थर्ड क्लास हम पढ़ेंगे, थर्ड क्लास वुड बी स्कैफोपोडा। क्लास 3 इट वुड बी स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा के अंदर भी नॉन डिस्टिंक्ट हेड मिलेगा आपको, एनिमल मेराइन होते हैं। क्लास 3, द थर्ड क्लास इज स्कैफोपोडा। द मेंबर्स आर मेराइन। इनकी जो शेल होती है वो ट्यूबुलर होती है, ट्यूब लाइक शेल, एंड दैट इज हैविंग ओपनिंग एट बोथ एंड, विद ओपनिंग एट बोथ एंड्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनका शेल बनाऊं आपको, लेट्स से दिस इज द ट्यूब लाइक शेल, और इस पे दोनों तरफ ओपनिंग होगा। हेयर इनका जो फिट होता है, इनका जो फुट होता है वो एम्बेडेड होता है इन द सॉयल, तो उसको बोलते हैं डिगिंग टाइप ऑफ फुट। दे आर हैविंग अ डिगिंग टाइप ऑफ फुट लाइक दिस, लेट्स से दिस इज द फुट हेयर, तो फुट इज डिगिंग टाइप। देन हेड रिड्यूस है, इनडिस्टिंक्ट हो जाता है, टेंटकल्स वगैरह डेवलप करके कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो फीडिंग में हेल्प करते हैं, और इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैपेटुला। सो देयर इज कैपेटुला प्रेजेंट विच इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज मेंट फॉर फीडिंग। दैट इज शेल हेयर एंड दैट इज फुट हेयर।
अगर हम डायग्राम की बात करें, दिस इज द डायग्राम ऑफ डेंटेलियम. क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज डेंटेलियम. डेंटेलियम का दूसरा नाम होता है बच्चों एलिफेंट टस्क शेल. एलिफेंट टस्क शेल या इसी को बोलते हैं टूथ शेल. जो एलिफेंट टस्क शेल या टूथ शेल है वो एज ए ऑर्नामेंटल घरों में भी यूज होता है. लाइक वो लिविंग तो नहीं होगा, डेड हो जाएगा, बट एज ए ऑर्नामेंटल आप उसे घर वगैरह में भी रख लेते हैं. डेंटेलियम के बारे में आपने एक और चीज पढ़ी थी, फॉर रेस्पिरेशन इट इज हैविंग मेंटल. तो स्कैफोपोडा के अंदर जो फुट होता है इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर डिगिंग. दैट्स व्हाई द नेम स्कैफोपोडा. शेल सिंगल पीस होती है, ट्यूबुलर होती है, दो अलग अलग एंड पर ओपन होगा. रेस्पिरेशन मेंटल से होता है, वो सारे मेराइन होते हैं. लार्वा इनका भी ट्रोकोफोर लार्वा होता है. तो लार्वा इन मेजोरिटी ऑफ देम इज, अब तक जितने भी पढ़े हैं सबके पास ही एनिलीड लाइक लार्वा, डेट इज ट्रोकोफोर लार्वा. आपके असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया था एक बार कि भाई ट्रोकोफोर लार्वा इज द कॉमन लार्वा ऑफ, यू विल आंसर इट इज द कॉमन लार्वा ऑफ एनिलिडा एंड मोलस्का. तो 3 क्लासेस हो गई. पहला क्लास था मोनोप्लेकोफोरा, द क्लासिकल एग्जांपल इज नियोपिलीना, उसके बारे में याद रखेंगे, लिविंग फॉसिल होता है. सेकंड क्लास इज पॉलीप्लेकोफोरा, उसके बारे में याद रखेंगे, शेल 8 प्लेट्स में होता है, क्लासिकल एग्जांपल इज शाइटॉन. एंड थर्ड क्लास हो गया स्कैफोपोडा, क्लासिकल एग्जांपल इज डेंटेलियम. डेंटेलियम इज कॉमनली नोन एज एलिफेंटस शेल. डेंटेलियम रेस्पायर बाय मेंटल. शेल इज ट्यूबुलर हैविंग 2 openings, having tentacles has been modified into filamentous structure which we call capitula and they are referred for feeding. इतना क्लियर हुआ? That is easy to remember. I am telling you the important points here, right? Then जो फोर्थ क्लास पढ़ेंगे that is the largest class. और जो लार्जेस्ट क्लास आपने पढ़ा था वो था गैस्ट्रोपोडा. द फोर्थ क्लास ऑफ मोलस्का. अच्छा, अभी तक जितने भी पढ़ रहे हैं इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप ही होता है. तो जब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का केस आएगा तो आई विल बी मेंशनिंग. द फोर्थ क्लास इज क्लास गैस्ट्रोपोडा. जो गैस्ट्रोपोड होते हैं दे आर बाय देयर हैबिटेट दे आर मैराइन एज वेल एज दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. इनका सिंगल पीस शेल होता है, सिंगल पीस शेल, बट इनके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं टॉर्शन. और टॉर्शन की वजह से उनका जो माउथ और एनस है दोनों एक ही तरफ आ जाता है. टॉर्शन की वजह से उनका जो बॉडी कैविटी का, लेट्स से दिस वाज माउथ, दिस वाज एनस, फिर ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी होता है 180 डिग्री पर, और एनस वाला पार्ट भी किधर आ जाता है, माउथ की तरफ. तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट they undergo 180 degree twisting of body. During development there is 180 degree twisting of body which we call torsion, or because of this torsion symmetry of body is lost. Because of this torsion symmetry of body is lost. Symmetry of body is lost and the adult of them become asymmetrical. Adults of gastropod are asymmetrical. जो इनके लार्वल फॉर्म होते हैं दे आर हैविंग अ बाइलेटरल सिमेट्री. एडल्ट की सिमेट्री कैसे हो जाती है, एसिमेट्रिकल. तो गैस्ट्रोपोड में सबसे पहले तो याद रखेंगे कि उनके पास बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स होता है जो जिसके लिए मोलस्का वेल नॉन भी है, एंड द आंसर इज टॉर्शन. देन आप याद रखेंगे इनके एडल्ट्स के पास एक वेल डेवलप्ड फीडिंग एपरेटस होता है. तो हेड इज डिस्टिंक्ट, हेड के ऊपर आइज एंड टेंटाकल्स होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं जनरल फीचर्स में. आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. देन रेडुला इज देयर, रेडुला इज प्रेजेंट, और जो रेडुला होता है दैट इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन हैविंग ट्रांसवर्स रोज ऑफ काइटेनियस टीथ. और जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है डेट इज मेंट फॉर फीडिंग एज वेल. इज दैट क्लियर? देन अब एक और चीज़ याद रख लेंगे,
देयर इज अ करेक्शन इन प्रीवियस लेक्चर। मैंने बताया था आपको केमिकल नेचर ऑफ वाटर को चेक करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओडोंटोफोर। दैट इज एग्जैक्टली नॉट ओडोंटोफोर, उसको बोलते हैं ऑस्फ्रेडियम। ओडोंटोफोर क्या होता है वो मैं बताऊंगा। रेडुला जो प्रेजेंट होता है, रेडुला इज प्रेजेंट ऑन ओडोंटोफोर। तो ओडोंटोफोर तो वो स्ट्रक्चर है जो रेडुला को होल्ड कर रहा है। तो प्लीज डू दैट करेक्शन इन योर जनरल फीचर्स एज वेल। ऑस्फ्रेडियम, द आंसर ऑफ डैट विच हेल्प इन द सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ फूड, डैट स्ट्रक्चर ये मिलेगा आपको सेंसरी पार्ट में। डैट स्ट्रक्चर विच इज मेंट फॉर द रिजेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ फूड, डैट इज नोन एज ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर, केमिकल नेचर ऑफ वाटर। तो सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ फूड ओडोंटोफोर से नहीं, ऑस्फ्रेडियम से होता है। ओडोंटोफोर तो वो स्ट्रक्चर है जो रेडुला को होल्ड किए हुए है। जो आइज होगी, जिसके ऊपर आइज, उनकी सिंपल आइज लोकेटेड है, उसको ओमेटोफोर कहते हैं। तो गैस्ट्रोपोड मैराइन एंड फ्रेश वाटर होते हैं। सिंगल पीस शेल होता है। डेवलपमेंट के दौरान ट्विस्टिंग हो जाती है तो सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है। रेडुला वेल डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेडियम है डिस्टिंक्ट है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इनका जो लार्वा होता है, आइदर दे आर हैविंग ट्रोकोफोर लार्वा और दे आर हैविंग वेलिगर लार्वा। तो इस क्लास का जो क्लासिकल लार्वा है, लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपोडा इज वेलिगर लार्वा। तो वेलिगर लार्वा इज द लार्वा ऑफ पाइला। आई टोल्ड यू दिस अर्लियर ऑन। तो जो क्लासिकल एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू लर्न हियर इज पाइला। पाइला इज कॉमनली नोन एज एप्पल स्नेल। और एप्पल स्नेल के बारे में याद रखना, एक हर्बीवोरस एनिमल होता है। दैट इज नॉट कार्निवोरस, दैट इज ए हर्बीवोरस एनिमल। अब इनका जो शेल होता है सिंगल पीस होता है और वो ट्विस्टेड होता है। इट इज स्पाइरली कॉइल्ड, इट इज स्पाइरली कॉइल्ड शेल। तो एक स्पाइरली कॉइल्ड शेल मिलता है इन गैस्ट्रोपोडा। A spirally coiled shell is found in gastropod. अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, वाई वी कॉल डेट ओपन एप्पल स्नेल, वाई पाइला इज नोन एज ओपन स्नेल। तो अगर आप पाइला को ड्रॉ करेंगे, इन इट्स अपीयरेंस इट एग्जैक्टली लुक लाइक एन एप्पल। लेट्स से ये इसका बॉडी पार्ट है और हेयर ऑन द डोर्सल साइड उसका जो शेल होगा डेट वुड बी ट्विस्टेड लाइक दिस। बॉडी के ऊपर राइट, पाइला के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है ऑन द वेंट्रल साइड, जो माउथ है उसको कवर करने के लिए देयर इज ए स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट हेयर एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओपर्क्यूलम। तो जो ओपर्क्यूला होता है दैट इज अ कवर ओवर माउथ। दीज आर द बॉडी ग्रोथ्स, लेट्स कॉल दैट बॉडी वॉल। बॉडी हॉल शेल के ऊपर जैसे जैसे पाइला बड़ा हो रहा है उसके ऊपर कुछ लाइन ऑफ ग्रोथ आ जाते हैं। लाइन ऑफ ग्रोथ आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो जो ये वाले लाइन ऑफ ग्रोथ होते हैं उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट होल। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। हाँ, अगर आपको नज़र आ जाए कभी कोई डायग्राम कि भाई ये किसका डायग्राम है, तो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट इज़ द डायग्राम ऑफ ओपल स्नेल। ये अपर लिप वाला पार्ट हो गया, लोअर लिप वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर एग्जाम्पल की बात करें, दे आर मोर एग्जाम्पल्स विच बिलोंग टू दिस क्लास। एक और बताया था आपको मैंने डोरिस के बारे में। इफ़ यू डू रिमेंबर, एप्लाइसा एंड डोरिस बोथ आर हर्माफ्रोडाइट। तो इस क्लास के कुछ मेंबर्स होते हैं। देखो, गैस्ट्रोपोड इज द लार्जेस्ट क्लास, गैस्ट्रोपोड इज द लार्जेस्ट क्लास। तो इस क्लास के कुछ स्नेल्स की क्लास है। और कौन कौन से स्नेल पढ़ रखे हैं आपने? लैमनिया, प्लेनॉर्बिस, याद है ये? दीज वर द सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस। दे आल्सो बिलोंग टू क्लास गैस्ट्रोपोडा, राइट? डोरिस, इट आल्सो बिलोंग टू क्लास गैस्ट्रोपोडा। सो जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं दे आर आइदर फाउंड इन फ्रेश वाटर और दे आर फाउंड इन मराइन वाटर। सिंगल पीस शेल होगी, स्पाइरली कॉइल्ड होगी, डेवलपमेंट के दौरान टॉर्शन हो जाता है, सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है।
है डिस्टिंक्ट होता है, रेडुला इज प्रेजेंट ऑन ओडोंटोफोर, ऑस्ट्रेडियम इज मेंट फॉर टेस्टिंग द फूड, एंड क्लासिकल एग्जाम्पल इज पाइला। पाइला का जो लार्वा होता है वो वेलिगर लार्वा होता है। पाइला का जो मोड ऑफ लिविंग होता है वो एम्फीबियस होता है। एम्फीबियस का मतलब हुआ कि वो दो अलग अलग हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करता है। जब वो लैंड के ऊपर सर्वाइव करता है तो वो कैसे रेस्पायर करता है? बाय पल्मोनरी सैक। व्हेन इट हैज़ बीन सर्वाइविंग ऑन लैंड इट इज रेस्पायरिंग बाय पल्मोनरी सैक, एंड व्हेन लेटर ऑन व्हेन इट इज सर्वाइविंग इन वाटर इट इज रेस्पायरिंग बाय, यस प्लीज, ये बताया था, इट इज रेस्पायरिंग बाय सम गिल लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल टिनिडियम। सो जो टिनिडिया होता है डेट इज रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर व्हेन इट इज इन वाटर, और जो पल्मोनरी सैक होता है डेट इज द रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर व्हेन इट इज ऑन लैंड। लैमनिया एंड प्लेनोर्बिस दे आर कॉमनली नोन एज पॉन्ड स्नेल, और कुछ ऑथर्स उनको लैंड स्नेल भी कहते हैं बिकॉज वो नियर टू द शोर मिलते हैं, जो किनारे वाला पार्ट होता है उसके पास मिलते हैं। ठीक है, राइट, ये हो गया गैस्ट्रोपोडा के बारे में। गैस्ट्रोपोडा के बाद जो नेक्स्ट क्लास हमें पढ़ना है वो है आपका पीलीसाइपोडा और बाइवेल्विया, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट cephalopoda. There are two more classes which are left behind. One is bivalvia and second cephalopoda. Okay, जो मंदिर वगैरह के अंदर शंख बजता है, रिमेंबर that is also a gastropod. वो क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता है। टर्बिनेला, टर्बिनेला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ शंख, and Turbinella is a gastropod, and Turbinella is you better know what Turbinella is used for. ठीक है, तो बच्चों ये होगा गैस्ट्रोपोड्स के बारे में। फिर आपके पास आता है एप्लाइसिया इज आल्सो अ गैस्ट्रोपोड। डॉरिस लिख दिया तो एप्लाइसिया भी लिख देता हूँ। बोथ आर रिमेंबर बोथ आर हर्माफ्रोडाइट। एप्लाइसिया का कॉमन नेम होता है बेटा सी हेयर। एप्लाइसिया इज कॉमनली नोन एज सी हेयर। एनिलीड में पढ़ाया था सी माउस, यहाँ पढ़ा रहा हूँ सी हेयर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, आई गेस दीज एग्जाम्पल्स आर इनफ ऑफ क्लास गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट आफ्टर इट वुड बी क्लास बाइवेल्विया। बाइवेल्व्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मोलस्क होते हैं। मोलस्क आर वेल नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेल, एंड शेल लेटर ऑन डेवलप्स इनटू पर्ल। अभी मैं वो बता भी दूंगा। जो नेक्स्ट क्लास होती है डेट इज क्लास पीलीसाइपोडा, साइपोडा, और लेट्स कॉल दैट क्लास बाइवेल्विया। बाइवॉल्व्स क्यों कहते हैं पहले तो ये सुन लो। अच्छा, दीज आर कॉमनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, दे आर मोस्टली मैराइन। बाइवॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शेल होता है वो सेक लाइक होता है, उसके अंदर दो अलग अलग वॉल्व्स हो जाते हैं, टू वॉल्ड, और इसको हाफ्ड कह सकते हैं। दो अलग अलग हिस्से हैं शेल के। टू वॉल्ड शेल इज प्रेजेंट, शेल इज प्रेजेंट, दैट्स वाई द नेम बाइवेल्विया। पीलीसाइपोडा नाम रखा है। इनका जो फुट होता है दैट इज लाइक द शेप ऑफ एन एक्स, उसको बोलते हैं हैश शेप। हैश शेप्ड वो होता है ना एक आपके पास कुल्हाड़ी जैसा जो होता है किसी चीज़ को काटने के लिए, इनका जो फुट होता है वो हैश शेप होता है। इनके बारे में याद रख लेना, वेल डेवलप्ड हेड नहीं होता है, हेड इज एब्सेंट। तो जो आपने स्कैफोपोडा पढ़ा था उसके अंदर भी हेड एब्सेंट हो गया था, इट इज़ नॉन डिस्टिंक्ट, और जो आप पीलीसाइपोडा पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी हेड एब्सेंट हो गया। हेड के साथ साथ हेड नहीं है तो आइज भी नहीं होगा, टेंटाकल्स भी नहीं होगा, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रेडुला इज एब्सेंट। तो रेडुला इज एब्सेंट वेयर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखना इन द मेंबर ऑफ क्लास पीलीसाइपोडा। देन जो इसके मेंबर्स होते हैं दे आर वेल नोन फॉर पर्ल फॉर्मेशन। जो मोती वगैरह बनाने वाला फीचर होता है दैट इज well known by pilicypods. Pinctada vulgaris, that is the American oyster which is well known for the formation of pearl. वो भी मैं बता देता हूँ अभी।
तो वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्या 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप डिस्कस करोगे, दैट वुड बी यूअर, तो फर्स्ट एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन Pili-Cypoda is Unio. Unio is commonly known as freshwater mussel. Unio is commonly known as freshwater mussel. तो आप एग्जाम ये भी याद रख लेंगे कि इनका जो हैबिटेट होता है वो मैराइन के साथ साथ फ्रेश वाटर भी होता है। अब अगर यूनियो को मैं बना के दिखाऊँ आपको यहाँ पर, लेट्स से इसकी जो शेल होगी वो 2 पीस होगी, ये एक साइड से देख रहे हैं, दूसरी साइड उधर होगा, तो लेट्स से शेल इज समथिंग लाइक दिस, और जहाँ पर जिस पॉइंट पर शेल के दोनों पार्ट कनेक्ट होते हैं वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं अम्बो। यूनियो को करेक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके ऊपर जैसे जैसे एजिंग होती रहती है वैसे वैसे लाइन ऑफ ग्रोथ आ जाता है। जैसे जैसे उसके अंदर एजिंग हो रही है वैसे वैसे उसके ऊपर लाइन ऑफ ग्रोथ आता रहता है। तो जो लाइन्स ऑफ ग्रोथ है, लाइन्स ऑफ ग्रोथ वो रिप्रेजेंट करते हैं एजिंग इन यूनियो। देन इसका जो फुट होगा, एज आई टोल्ड यू, फुट का शेप कैसा होता है शेप। फुट किस तरफ होगा, डोर्सल साइड या वेंट्रल साइड, वेंट्रल फुट होता है। लेट्स से दिस इज फुट हेयर। यूनियो फिल्टर फीडर होता है, 2 साइफोन, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। लेट्स से दिस इज द इनहेलेंट साइफोन, जिससे वो वाटर, इनहेलेंट साइफोन जिससे वो वाटर पिकअप करेगा, एंड दैट इज एक्सहेलेंट साइफोन, जिससे एक्सहेलेंट साइफोन जिससे वो वाटर बाहर निकालता रहेगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया यूनियो। व्हाट इज द लार्वा ऑफ यूनियो, ये सवाल पूछा जाता है बहुत बार। आंसर इज ग्लोशीडियम लार्वा। और ग्लोशीडियम लार्वा के बारे में आप और क्या याद रखेंगे, इट इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज, इट इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज, राइट। आपने गैस्ट्रोपोड में डोरिस का कॉमन नेम नहीं लिखा, वो भी लिख लो। डोरिस का कॉमन नेम होता है सी लेमन, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। तो एप्लाइसिया सी हेयर होता है और डोरिस सी लेमन होता है बेटा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया इनका यूनियो। सेकंड एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे दैट इज पिंकटाडा वल्गैरिस। पिंकटाडा वल्गैरिस को कॉमनली बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। पिंकटाडा वल्गैरिस का जो कॉमन नेम होता है वो पर्ल ऑयस्टर है, जो वेल नोन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। पर्ल वगैरह कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो पिंकटाडा वल्गैरिस, सेकेंड इज पिंकटाडा वल्गैरिस, और दैट इज कॉमनली नोन एज पर्ल ऑयस्टर। और इसका एक नाम और होता है पर्ल ऑयस्टर, और लेट्स कॉल दैट अमेरिकन ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर और लेट्स कॉल दैट अमेरिकन ऑयस्टर। इट इज वेल नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। सी पर्ल बनता कैसे, लेट मी टेल यू। लेट्स से दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक लेयर विच वी कॉल मेंटल। और मेंटल एपिथेलियल लेयर होता है, मेंटल के अंदर खूब सारे कॉलमनर सेल होते हैं। तो मेंटल को कुछ ऐसे बना देता हूं मैं। और एक तो स्पेस बना था मेंटल कैविटी, जो मेंटल और विसल हम के बीच में कुछ यहाँ पर मेंटल कैविटी होता है। और ये मेंटल नॉर्मली सिक्रेट करता है एक शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस शेल हेयर एंड दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो शेल और मेंटल के बीच में स्पेस है दैट इज इंपॉर्टेंट। जब भी कोई इरिटेंट पार्टिकल, चाहे मोस्टली वो पार्टिकल सैंड पार्टिकल होता है, सिलिका का पार्टिकल हो तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन होगा। जब भी कोई इरिटेंट पार्टिकल शेल और मेंटल के बीच में आता है तो जो मेंटल की सेल्स हैं, जो मेंटल की सेल्स हैं वो शेल के चारों तरफ एक करेक्टरिस्टिक लेयर बनाना शुरू कर देती हैं। जो मेंटल की सेल्स हैं वो इरिटेटिंग पार्टिकल के चारों तरफ एक करेक्टरिस्टिक लेयर बनाना शुरू कर देती है। जो ये करेक्टरिस्टिक लेयर बनाती है मेंटल ओवर द इरिटेटिंग पार्टिकल, इसको बोलते हैं नेक्रे, और सिंपली कॉल्ड एट नेक्रियस लेयर और नेक्रियस लेयर। और ये जो नेक्रियस लेयर है ये बढ़ती चली जाएगी विद द ईयर्स। दिस स्ट्रक्चर वुड बी गोइंग टू इंक्रीज विद द ईयर्स, and later after several years
ये जो नेक्रे कहाँ का बना है, डेट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो इरिटेटिंग पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जो भी स्ट्रक्चर बचती है उसको बोलते हैं पर्ल। तो केमिकली पर्ल कहाँ का बना होता है, आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। पर्ल कौन बनाता है, आंसर इज मेंटल। किन ऑर्गेनिज्म में बनाता है, आंसर इज मेंबर ऑफ पीलीसाइपोड। क्लासिकल एग्जाम्पल जो सबसे फेमस है वो पिंकटाडा वल्गैरिस है। एक और होता है एनिमल, उसका नाम होता है ट्राइडेक्ना। जो ट्राइडेक्ना होता है उसका जो पर्ल है वो इन द साइज ऑफ टेनिस बॉल होता है। इट कैन मेक अ पर्ल ऑफ टेनिस बॉल साइज। तो अगर खूब पैसे कमाने हैं तो इसका पर्ल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो पिंकटाडा वल्गैरिस हो गया, यूनियो हो गया। एक और एग्जांपल याद रख लेना, टेरिडो, एंड टेरिडो इज कॉमनली नोन एज शिप वॉर्म। टेरिडो इज कॉमनली नोन एज शिप वॉर्म। अनदर एग्जांपल सोलेन, कॉमनली नोन एज रेजर वॉर्म, और इसको रेजर शेल बोलते हैं। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पीलीसाइपोडा। 2-3 चीज़ें याद रख लेंगे। पीलीसाइपोडा में रेडुला नहीं होता है, पीलीसाइपोडा के हेड जो है डिस्टिंक्ट नहीं होता, रिड्यूस हेड है। पीलीसाइपोडा के मेंबर्स पर्ल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। प्लीज डू रिमेंबर पिंकटाडा वल्गैरिस एंड ट्राइडेक्ना। ठीक है, और पीलीसाइपोडा के जो टेरिडो होता है, इट यूज टू बोर इनसाइड द शिप, ये वुड वगैरह पे फीड करता है, इसलिए इसको शिप वॉर्म भी कह देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना टेरिडो के बारे में। ठीक है बेटा, देन ये जितने भी हमने पढ़े इनको बोलते हैं नॉन सिफेलोपोड मॉलस्क। आपने जो 5 क्लासेस पढ़ी, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पीलीसाइपोडा, ये सब होते हैं नॉन सिफेलोपोड मॉलस्क। अब जो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं डेट इज ऑफ सिफेलोपोड मॉलस्क, द मोस्ट एडवांस्ड मॉलस्क। द नेक्स्ट क्लास इज ऑफ सिफेलोपोड मॉलस्क, और लेट्स कॉल दैट मोस्ट एडवांस्ड मॉलस्क। जो सिफेलोपोड होते हैं उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही बताया था आपको कि भाई उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द लास्ट क्लास इज क्लास सिफेलोपोडा। और सिफेलो वर्ड कहाँ से आया है, हेड से, और पोडा वर्ड कहाँ से आया है, लेग से। तो उनके जो हेड है वो कहाँ, उनके जो लेग्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हेड के ऊपर होते हैं, राइट। सर के ऊपर पैर मत रखो, राइट। सिफेलोपोड्स आर दोज वन। दीज आर मोस्ट एडवांस्ड मॉलस्क, मोस्ट एडवांस्ड मॉलस्क। इनके कुछ फीचर्स लिख लो आप। सिफेलोपोड मैराइन होते हैं, सिफेलोपोडा मैराइन इन नेचर। शैल का जो केस पढ़ते हैं, शैल एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये केस तो आप गैस्ट्रोपोड में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यों बताया था कि गैस्ट्रोपोड कुछ स्लग्स होते हैं जिनके अंदर शैल नहीं होता। तो स्लग्स आर कॉमनली गैस्ट्रोपोड। स्लग्स जो होते हैं, जो लाइमैक्स है, गैस्ट्रोपोड का एक और एग्जाम्पल याद आया, आंसर इज लाइमैक्स और स्लग। उनके अंदर भी गैस नहीं होता है शेल। इनका शेल एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल शेल क्लासिकल एग्जाम्पल इज नॉटिलियस। तो नॉटिलस इज द गैस्ट्रोपोड विच इज हैविंग एक्सटर्नल शेल। देन शेल इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल इन केस ऑफ सीपिया। रिमेंबर दैट सीपिया, स्क्विड्स, लॉलीगो, उनके पास इंटरनल शेल होता है। एंड शेल कुड बी एब्सेंट। एब्सेंट किसके अंदर होता है, आई विश आप मुझे बता पाएं, आंसर इज ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस के अंदर शेल नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सिफेलोपोड मैराइन होते हैं, शेल के फीचर्स ये होते हैं उनके। उनका जो फुट होता है, इनके केस में जो फुट होता है वो आगे जाके ब्रांच्ड हो जाता है। इट इज ब्रांच्ड एंड इट इज ब्रांच्ड इनटू टेंटाकल, जिसको हम आर्म्स कहते हैं। तो सिफेलोपोड के अंदर नुमेरस आर्म्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जो अराइज होती है उनके फुट से, उनका जो फुट होता है वो आगे जाके मॉडिफाई कर जाता है, जिसको हम आर्म्स कहते हैं। या फिर हाँ ठीक है, डेट इज ओके। देन इनके बारे में और क्या याद रखना है, इट दे आर हैविंग क्लोज सर्कुलेशन, दे आर हैविंग क्लोज सर्कुलेशन। इन आर्म्स में से एक आर्म मॉडिफाई हो जाती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट।
जो भी इनके पास आर्म्स होंगी उसमें से एक आर्म मॉडिफाई हो जाती है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, और जो मॉडिफाइड आर्म है उसको बोलते हैं हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म। तो जब सवाल में क्वेश्चन में हेक्टोकोटिलाइज्ड वर्ड याद आए तो समझ लेना मॉडिफाइड आर्म है, और वो कहाँ के लिए है, डेट इज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म। और मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ कि कटल फिश के केस में, इन केस ऑफ कटल फिश, जो फिफ्थ लेफ्ट आर्म होती है, फिफ्थ लेफ्ट आर्म वो हेक्टोकोटिलाइज्ड हो जाती है। इन केस ऑफ ऑक्टोपस जो थर्ड राइट आर्म है वो हेक्टोकोटिलाइज्ड हो जाती है। आपसे क्वेश्चन में ना पूछे वो अलग बात है, हेक्टोकोटिलाइज्ड हम पूछ ले वही काफ़ी है। पर अभी ये याद रख लो, इन कटल फिश फिफ्थ लेफ्ट एंड इन ऑक्टोपस थर्ड राइट आर्म इज हेक्टोकोटिलाइज्ड। तो आपके पास क्लोज सर्कुलेशन होता है सेफेलोपोड के पास, इनके जो फुट होते हैं वो हेड के ऊपर होते हैं, मैराइन होते हैं, और शेल कुछ ऐसे करके होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्टोपस विच वी कॉल डेविल फिश। इनकी जो आर्म्स होती हैं उनके अंदर शकर भी होते हैं। आर्म्स कंसिस्ट ऑफ शकर्स, एंड यू बेटर नो व्हाट आर शकर्स मेंट फॉर, दे आर मेंट फॉर अटैचमेंट। तो अगर ऑक्टोपस आपको बनाया जाए, मैं उल्टा करके बनाऊंगा, आप ये मत कहना सर आपने इसके जब आप पानी में देखते हो तो आपको ना उसके लेग उसको हेड ऊपर नज़र आता है, लेग नीचे नज़र आते हैं। मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द हेड वाला पार्ट ऑफ ऑक्टोपस, देन दिस इज द फुट वाला पार्ट ऑफ ऑक्टोपस, एक्सटेंशन, और उसके बाद ये उसके आर्म्स हो गए। ऑक्टोपस में टोटल ऑफ कितने आर्म्स होते हैं? आंसर इज 8। हाउ मेनी आर्म्स आर प्रेजेंट इन ऑक्टोपस? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उसके आइज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब लेट्स से दीज आर द लेफ्ट वन, दीज आर द राइट वन। इन ऑक्टोपस जो थर्ड राइट होता है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, अगर ये 8 से ज़्यादा हो गए तो फॉरगेट अबाउट देम। जो थर्ड राइट होता है वो थोड़ा स्पून शेप हो जाता है लाइक दिस, इसको बोलते हैं हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म, एंड इट इज़ मेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। देन इंटरनली आर्म्स आर हैविंग शकर्स लाइक दिस, इनसाइड आर्म्स, ऑल द आर्म्स आर हैविंग शकर्स लाइक दिस। ठीक है, इसके जो मेंबर होते हैं सिफेलोपोडा के, दे आर वेल नोन फॉर हैविंग इंक ग्लैंड, और इंक ग्लैंड सिक्रेट करता है एक इंक जो इनको प्रिवेंट करता है टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज़। तो एक ब्लू कलर का इंक सिक्रेट करता है जो एनिमीज़ से एस्केप करने में हेल्प करता है, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है बिटवीन दीज एंड एनिमीज़। तो पहला एग्जाम्पल याद रख लेंगे, आंसर इज ऑक्टोपस। सेकेंड एग्जाम्पल इज कटल फिश, and third example is squid। राइट, तीनों के ही अंदर इंक ग्लैंड्स होते हैं। ऑल दीज थ्री आर हैविंग इंक ग्लैंड्स, ऑल ऑफ देम आर हैविंग इंक ग्लैंड्स, ये याद रख लेंगे। देन जो लार्जेस्ट मोलस्क है आर्कीथुइथिस, Thuithis is known as largest mollusk, 30 मीटर इन साइज तक चला जाता है। That is also classified in cephalopoda। ठीक है, तो cephalopods सबसे एडवांस मोलस्क होते हैं, मेराइन होते हैं, शेल एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, या एब्सेंट हो सकता है। इंक ग्लैंड्स होती है जो हेल्प करती है टू एस्केप फ्रॉम द प्रे। इनके अंदर जेट प्रोपल्शन मूवमेंट होते हैं, जेट प्रोपल्शन मूवमेंट। अगर आपने कभी किसी कश्ती वगैरह को चलते हुए देखा हो तो जब वो मूव करती है तो पानी पीछे प्रोपेल करती रहती है, उसी मूवमेंट को बोलते हैं जेट प्रोपल्शन मूवमेंट। तो इनके बॉडी के अंदर साइफोन डेवलप हो जाते हैं जो जेट प्रोपल्शन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्लोज सर्कुलेशन होता है,
कुछ आर्म्स मॉडिफाई कर जाती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, उनको बोलते हैं हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म. डेविल फिश और ऑक्टोपस, कटल फिश एंड स्क्विड, these are the three classical example and Archithuithis as well of cephalopoda. तो बच्चों ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का के बारे में. इज दैट क्लियर? ओके, एक दो इम्पोर्टेंट से पॉइंट और बता देता हूँ आपको. कुछ टर्म्स, अरे देयर इज अ करेक्शन, डू इट. कटल फिश इज स्क्विड. कटल फिश ही स्क्विड होता है. जो लॉलीगो होता है, लॉलीगो दैट इज सीपिया. तो सीपिया इज लॉलीगो, लॉलीगो एंड कटल फिश स्क्विड. आई डोंट नो व्हाट माय ब्रेन इज डूइंग टुडे, राइट. तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट सर्टेन टर्मिनोलॉजी जो आप याद रख लें तो काम आएंगी. स्टडी ऑफ मोलस्क के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेटा मालाकोलॉजी. सो मालाकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलस्क. और जब स्टडी ऑफ शैल करते हैं, अगर आप शैल को स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्कोलॉजी. कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शैल. तो स्टडी ऑफ शैल इज कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्क इज मालाकोलॉजी. एक मॉलस्क बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है, जो यूज़ होता है गांव में ना, गेम होता है चौपाड़, उसके अंदर एक मॉलस्क यूज़ होता है, उसको बोलते हैं कॉपरी. तो कॉपरे और साइप्रे, कॉपरी इज कॉमन नेम. कॉपरे इज द वन a common mollusk which is used in a game known as chopard. Then अगर आपसे पूछ ले भाई फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कौन होते हैं, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री इज कोकिची मिकीमोटो. कोकिची मिकीमोटो फ्रॉम जापान. ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री. उन्होंने एक आर्टिफिशियल मेथड डेवलप किया फॉर इरिटेशन ऑफ मेंटल. वो सिलिकेट्स वगैरह एंटर करते थे विद द माउथ और आफ्टर सेवरल ईयर्स एक बड़ा सा पर्ल बन जाता था. सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ मोलस्क. आई गेस दे आर इनफ. और इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं. आप प्लीज़ याद रखें 6 अलग अलग क्लासेज हैं, क्या फीचर्स हैं और किसके पास शैल होती है, किसके पास शैल नहीं होती है. इंग्लैंड्स तीनों के पास है, रिमेंबर. Largest mollusk Archithuithis and all these things. So that is all for today student. Wish you very good luck. ये पढ़ें. I will be posting assignment soon. Thank you. Class is dismissed.